Hi folks, this is Sadhya and I am starting a new YouTube channel named Reaction Euphoria. Euphoria का मतलब होता है the extreme state of happiness. This video is by Mostly Sane जिसका टाइटल है Expectations on the first day of college. तो मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो शायद मुझे कुछ टिप्स मिल जाए और गाइस पहला वीडियो है तो थोड़ा संभाल लेना. What's up? Thank you so much for watching Mostly Sane. I'm Prajakta. Welcome back to another Real Talk Tuesday video. Now, आज सुबह मैंने एकदम impromptu live किया था मेरे Instagram पे, which I intend on doing like much more. So if you're not following me on Instagram, it's @mostlysane. Do that. और उसमें मुझे पता चला that a lot of you guys are nervous about your first initial days in college. या तो तुम्हारा college just start हुआ है या अभी start होने वाला है. मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज पे. आई वॉज लाइक रियली एक्साइटेड पर नर्वसनेस की कोई बात नहीं थी. अभी एडमिशन्स चल रहे हैं stuff like that. And that got me to think that, you know what, I think I want to make a video called What to Expect on Your First Day of College. Let's go. I remember on my first day of college, I was so nervous. एक दिन पहले मैं मम्मा पापा को लेके I think D-Mart से मैंने एक न्यू टॉप खरीदा था. It was grey and I was like, I have to look my best. I have to be my best on my first day of college. I want to look, you know, प्रेजेंटेबल. बिकॉज उससे पहले स्कूल में तो रोज यूनिफॉर्म्स ही पहने जाते थे, तो जैसे ही सिविल ड्रेस पहन के कहीं सिविल ड्रेस या आई जस्ट सेड दैट पहन के कहीं जाने की बात होती थी तो एकदम से नर्वस हो जाते थे. एंड आई रिमेंबर हाँ, तो ये चीज़ होती थी कि कॉलेज जाना है तो यू कैन वियर एनीथिंग कैजुअल्स और एनीथिंग. तो एक एक्साइटमेंट था कि हाँ स्कूल में यूनिफॉर्म एंड नाउ वी कैन वियर एनीथिंग. तो येस, वी वांट टू बी आवर बेस्ट, वी वांट टू बी प्रेजेंटेबल एंड ऑल. तो putting like doing my hair really well. उस टाइम पे स्ट्रेटनर वेटनर तो नहीं था, लेकिन like putting on lip gloss and kajal and everything and going to college and still feeling like such a loser, which is why I want to tell you, first of all, do not care about how you look when you go to college. Everybody looks funny in college. Everybody looks all lanky in college. That is how your college pictures become fun 10 years later. Like अभी जब हम हमारे college के pictures देखते हुए like what were we thinking? But it's fun, right? You don't have to look a certain way. You have to look like yourself. Okay? Don't worry about क्या कपड़े पहनने हैं, कितने महंगे जूते हैं, कितना मेकअप पहना है. बिल्कुल मत. देखो ये सब ना स्टार्टिंग में होता है कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा दिखना है, बट इवेंचुअली क्या होता है हम लोग बोर हो जाते हैं 1 या 2 हफ्ते में ही. तो वी वुड वियर एनीथिंग टू कॉलेज. लाइक जो पजामा हुडी मिल गया वो पहन के कॉलेज चले जाते हैं. ठीक है, लड़कों का तो ऐसे ही रहता है, बट लड़कियां थोड़ा बहुत देख लेती है, थोड़ा बहुत मैचिंग. बट लेकिन आजकल ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लोगों को कि क्या पहन रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं. सोचना इस बारे में when you start going to college. Be as chilled, as regular, because जब तुम comfortable होगे, तुम confident रहोगे and you look your best. So do not care about what you wear or how you look when you start off with college, because eventually ना college में you will find your style. You'll also find sort of people you hang out with, what makes you comfortable, what makes you uncomfortable, किस टाइप के कपड़े देखना तुमको पसंद है, पहनना, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, ये थोड़े थोड़े देर बाद कॉलेज में mold होगी. When you'll see eventually you'll dress up in a way you're like, I look good, you know what I mean? So don't worry about that. Number 2, you're gonna meet so many new people. So many new people from different. एक्चुअली मतलब इतने लोग मिल जाते हैं ना कॉलेज में कि याद भी नहीं रहता कि चलते फिरते कोई मिल गया कि इससे कहाँ मिले थे. बस ये याद होता है कि हाँ शक्ल देखी है और कुछ नहीं याद होता कि कहाँ मिले थे, इसका नाम क्या था. मेरा तो इंट्रो ऐसे ही चला जाता है, हाय, उसमें मैं नाम ही सोच रही थी क्या था नाम क्या था. Backgrounds from different mediums. Like बहुत सारे लोग मराठी मीडियम में सीखे हुए होंगे, बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम में सीखे होंगे. I remember actually having a couple of girls who had learned, who had studied in Urdu back in college. And that's a beautiful thing. क्योंकि यार कंपेयर करने के लिए क्या है, स्कूल में क्या था, स्कूल में हम सारे एक जैसे लोग एक ही तरह की पढ़ाई करते थे, एक ही तरह के जाते थे, एक ही तरह के हमारे नोटबुक्स, बैग, सब कुछ मैच करके होता था. बट now everyone's different, which is a great thing. You're going to be bombarded with the kinds of personalities that you've never seen before.
हमेशा ना एक ये वाला डर होता है कि ओ माई गॉड आई एम एन आउटसाइडर, बिकॉज वेन यू गो देयर स्पेशली आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियर विजन आई हैव। जब मैं कॉलेज के कैंटीन, जब हमारे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में जब ब्रेक हुआ और मैं कैंटीन में गई स्कूजी और मैं हाँ, मेरे को भी याद है द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज देयर इज़ अ नेस्कैफे बूथ इन द कॉलेज। जब मैं फर्स्ट डे वहाँ पे गई थी तो माई कॉलेज इज़ वन ऑफ द प्रेस्टीज कॉलेजेस इन दिल्ली, तो वहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज एक्चुअली, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका, अमेरिका। सो इट वॉज लाइक वाओ, इतना पर्सनैलिटीज़, इतने सारे नए लोग, तो इट वॉज अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन मी। बट इवेंचुअली वो सब भी ऐसे बात करते करते नॉर्मलाइज ही हो जाता है। मैं कैंटीन में गई एंड इट वाज सो बिजी, मतलब सब लोग उधर, अन्ना होता था, अन्ना नंदू होते थे केलकर के कैंटीन में, इफ यू फ्रॉम केलकर ए हाई फाई एवरीवनस लाइक हैंगिंग आउट, ना ये देना वो देना, बातें चल रही हैं, सबके अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, कैंटीन के टेबल्स पूरे पैक्ड हैं, बैठने की जगह नहीं है, सब लोग इधर उधर एक्सक्यूज मी करके आए जा रहे हैं, मतलब एवरीवन नोज देयर वे एंड यू फील लाइक सच एन आउटसाइडर, यू फील लाइक कि मतलब मतलब ये वाली बात हो जाती है। बट ट्रस्ट मी, आई हैव स्पेंट 5 years of my life in that place, in my college, and trust me, nobody knows what they're doing. तो पहली बात तो ना अपने दिमाग से ये बात हटा दो कि ओ शिट मैं आउटसाइडर हूँ, या मुझे पता नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, या मैं everyone here knows their shit. Nobody knows anything, nobody has their shit together, everyone is just used to the place which you will get eventually. तो बिल्कुल भी ना ये मन में ये वाला कॉम्प्लेक्स मत रखना कि you're an outsider, तो तुम्हें समझ नहीं है when you go to college. स्टार्टिंग के 2 महीने तक लगता है मैक्स टू मैक्स कि आउटसाइडर हो, फ्रेशीज होते हैं, सीनियर्स बोलते हैं कि फ्रेशी एंड ऑल, बट इवेंचुअली यार तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये तो अपन का घर है। स्कूल में वो फीलिंग नहीं आती थी कि ये घर है, कॉलेज में लगता है कि हाँ ये तो घर है, यहीं पे रहना है यार पूरा दिन। काफ़ी फन होता है कॉलेज। Another thing that you can expect when you go to college is that all your ideas of how college life is going to be are going to come crumbling down. मतलब ऐसे पूरा भूकंप आके सारी आइडियाज टूट के देखो, आई डोंट एग्री ऑन दिस। कुछ जो चीज़ें मैंने सोची थी कॉलेज में होंगी वो मेरे साथ आज भी होती हैं, ठीक है, ये सोसाइटी वो सोसाइटी, एंड कुछ चीज़ें जो एक्सपेक्ट करते कि ऐसा होगा, आई वुड से 30 to 40% मैच करता है, बट उसके अलावा जो भी एक्सपेक्टेशंस रख के आते हैं वो ऐसी बहा जाती है, पानी में बह जाती है। घर के चूरा होने वाली, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि हम पूरी स्कूल लाइफ, सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने पूरी स्कूल लाइफ में सुनी है, मेरे टीचर्स बताते कि सुनो हम ही वी केयर अबाउट यू राइट नाउ, जब कॉलेज जाओगे ना किसी टीचर को कोई पड़ी नहीं होती है। बिल्कुल झूठ, सब टीचर्स को सब पड़ी होती है। इनफैक्ट मैंने अपने टीचर्स को सिर्फ सीरियसली कॉलेज आके ही लिया है। तो ये एक आइडिया। दूसरी आइडिया, एक तो बॉलीवुड इतना देख के, इतना रट के फॉलो किया हुआ है ना कि मेरे साथ भी लाइफ में यही होने वाला है। द मिनट आई एम अबाउट टू फॉल, समवन्स गोना कैच मी, किसी से टकरा के मेरे बुक्स गिर जाने वाले हैं, या मेरे क्लास में इतना मस्त लड़का होगा जिससे लव एट फर्स्ट साइट, शादी होगी 15 साल बाद। ये सारे इतनी अनबिलीवेबल कौन लेके आता है एक्सपेक्टेशंस, लाइक लड़का होगा, गिरेंगे पकड़ेंगे। यार देखो, इतनी एक्सपेक्टेशंस तो मैंने कभी रखी नहीं कॉलेज से, तो तुम भी मत रखना तो अच्छा ही होगा। सारे आइडियाज होते हैं ना, ये सारे आइडियाज तुम्हारे एकदम क्रम्पल हो जाएंगे फॉर गुड बिकॉज इट्स मच बेटर देन दैट यार। मतलब इसे, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कोई भी ऐसे मत जाना कॉलेज में कभी भी कि नहीं यही करना है तो बस यही करना है, मैंने डिसाइड किया है, मेरा प्लान यही। यू डोंट नो प्लान क्या है। तुम्हें इससे पहले तुम कॉलेज कभी गए नहीं हो, तो अब जब जा रहे हो, यू डोंट नो हाउ मेनी एवेन्यूज विल ओपन अप फॉर यू डोंट नो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज रोज तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। तो that's gonna happen. Every day is a new day in college. Every day is exciting and full of masti and full of new adventures, I would say. ठीक है, कभी कुछ हो रहा है, कभी रैलीज निकल रही है, मतलब ठीक है जो। Another thing I want to tell you is कि कई बार ना college life में we become rebels कि अलग रहना है, ये रहना है, which is a great thing. It is awesome to sort of make your voice heard. It's awesome to stand out. It's awesome to have different choices, but never be a wannabe rebel, you know. मतलब जो बस for the sake of creating trouble is creating trouble, just for the sake of bunking classes is bunking classes, for just for the sake of trying to be cool is harassing or bullying others. I'll tell you why.
I remember I had a very good time all through college is because ना तो मैंने कभी अपने क्लासमेट्स को ऑफेंड करा, ना मैंने अपने कभी टीचर्स को ऑफेंड करा. आई वॉज नॉट द काइंड ऑफ स्टूडेंट जो फर्स्ट आती थी. ओके, आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. आई वॉज नेवर द काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसके सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे सबमिट होते थे. नो, मैं कभी फर्स्ट. आई एम नेवर दैट स्टूडेंट. मैं एक रात पहले पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद जितने नंबर आ जाए उसी में हम खुश हो जाते हैं. मेन मोटिव होता है पास हो जाए, पास हो जाए, पास हो जाए, बट इवेंचुअली पास हो जाते हैं. ठीक है. और असाइनमेंट्स तो लाइक 12 बजे का सबमिशन होता है तो 59 तक सबमिट होती है. तो कॉलेज में चिल हो जाते हैं, पर लेकिन थोड़ा बहुत रहना पड़ता है डिसिप्लिन, तभी CGPA बना पाओगे. बेंच पे नहीं बैठती थी मैं, कभी लेक्चर पे टाइम पे नहीं पहुंचती थी. और मैं बंक करती थी. मैं बंक करके कैंटीन में बैठती थी, मैं बंक करके अपने थिएटर हॉल में बैठती थी. मैंने सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन मैंने कहीं पे भी ना अपने क्लासमेट्स को कभी ऑफेंड किया, ना मेरे टीचर को कभी ऑफेंड किया. यू नेवर वांट टू बी इन अ पोजीशन वेयर nobody likes you. You know, and especially in those golden 3 to 5 years where you will make the best of your friends, where you will try the most absurd things with those people, where you will spend most of your time. मतलब कॉलेज भले ही 4-5 घंटे का हो, कॉलेज से पहले तुम 2 घंटे आओगे, कॉलेज के बाद तुम 3 घंटे चिल करोगे, उसके बाद तुम ट्रिप्स पे जाओगे, तुम घूमने जाओगे, मूवी, शॉपिंग. तो imagine this is where your clan is made, this is where your tribe is made. So don't try to be that person who's a rebel for no reason. You know what I mean? So वो Okay, so a little thought on this. I think you are remembered by how you make people feel. मतलब तुम्हारे आसपास जो लोग होते हैं, तुम्हारे आसपास रहने से कैसा फील करते हैं, they will stick around more to you. ठीक है. ये तो है कि कॉलेज तुम्हारा घर बन जाता है, तुम्हारी लाइफ बन जाता है, बिकॉज इट्स लाइक कि तुम पूरा टाइम ही कॉलेज में बता रहे हो, ट्रिप से लेके लंच से लेके, मतलब एवरीथिंग इज इन कॉलेज. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन पॉइंट, दैट यू डोंट हर्ट एनीवन इंटेंशनली एंड जस्ट मेक पीपल फील गुड व्हेन यू आर अराउंड देम. वो मत करना. Also the last thing, college is the only place where you can get away with being broke. I swear to God, it is so much. I feel like एक ही टाइम होता है जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते ना, तो मज़ा ज़्यादा आता है. I'll tell you how. मुझे याद है, मैं, सिद्धाली और अंकिता, हमारे पास पैसे नहीं होते थे ज़्यादा खर्च करने के लिए. पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी. ट्रस्ट मी, किसी के पास नहीं होते. एवरीवन इज ब्रोक. मैगी खरीदने के पैसे नहीं होते लोगों के पास. और हम चल के केरकर कॉलेज मुलुंड से मुलुंड स्टेशन तक जाते थे. What we used to do is we used to chip in, I think 5 rupees each to buy a slice of Iyengar मावा केक. और वो हमारी ट्रीट होता था. एंड आई रिमेंबर दैट बिकॉज हमेशा अफोर्डेबल नहीं होता था. रोज़ 5 रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं यार. तो मतलब जिस दिन कर सकते थे उस दिन लगता था कि ओ माई गॉड. फिर हम लोग कहीं चाइनीज़ खाने जाते थे तो सूप 1/2 करके ओके, तो उसी में से मतलब ओवरऑल ये जो पूरा तड़जोड़ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट विथ योर फ्रेंड्स, यू नो, कि अरे यार पैसे उधार दे दे, कल दे दूंगी, या फिर कल के पैसे तेरे नूडल्स के पैसे मैं भर दूंगी. ऑल ऑफ दिस, ओवरऑल दिस थिंग दैट यू हैव व्हेन यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी इन कॉलेज बट यू स्टिल मैनेज टू हैव सो मच फन इज द ओनली टाइम यू कैन गेट अवे विथ. देखो, एक और चीज़ होती है, सीनियर्स जो होते हैं ना, वो तुम्हें हमेशा फ्री में खिलाते हैं कॉलेज में. तो सीनियर्स का ये ट्रेंड होता है कि उनके भी सीनियर्स ने उन्हें फ्री में खिलाया होता है, तो हमेशा फ्री में खिलाते हैं. तो एक छोटा सा ट्रिक है कि सीनियर्स के आसपास थोड़ा रहोगे तो कभी पैसे ना हो, ब्रोक हो, तो खिला देते हैं. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. पर लेकिन उधारी भी तो बहुत है. जो मैगी वाले भैया होते हैं उनसे उधारी पे रहते हैं, मतलब उधारी पे तो बहुत रहते हैं. मतलब ट्रस्ट मी, कॉलेज के बाद अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इट्स नॉट द सेम, यू नो, क्योंकि इट्स समथिंग एल्स. सो अगेन expect करना कि you will be broke in college unless you're from like a really super rich family and you have a lot of money on you all the time, then this is not for you. But for like everybody else who are from a middle class family like I am, ये होने वाला, trust me, it's a lot of fun. It's a lot of fun. तो बिल्कुल ना इस चीज़ को लेके कभी ये मत होना कि ओह मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे सारे फ्रेंड्स इतना एंजॉय करते हैं. नहीं यार, find your tribe. That's what I'm saying. Find your tribe. You're going to enjoy with them whether or not you have money on you. Oh boy, I miss college so much, yaar. I really wish if anyone from Kirkar is calling me, please call me for something. I would really like to visit college sometime. So yeah, if it's your first day of college, congratulations baby, all the best. You're going to get on a ride that's going to be the funnest,
most exhausting, excruciating, exciting, amazing ride of your life. And learn as much as you can, absorb as much as you can. जितनी नई चीज़ें try कर सकते हो करो. Please don't have any inhibitions in college. College is the only time when you can get away with making mistakes. And please make as many mistakes as you can. तो इससे मेरे को एक कहानी याद आ रही है, 2 मिनट की कहानी बताती हूँ. तो कॉलेज में हमारा जब स्टार्ट हुआ था ना कॉलेज, तो नया नया ऐसे बहुत शौक पड़ा था कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है. एंड स्पेशली हॉस्टल वाले लोग आर लाइक कुछ भी करना है. तो मैं अपनी गर्ल्स हॉस्टल में थी, तो इन्होंने प्लान बनाया, हमारी छत थी 12th फ्लोर पे, तो इन्होंने प्लान बनाया कि 12th फ्लोर पे स्नीक आउट करके जाते हैं. इट वॉज नॉट अलाउड टू गो देयर. तो हम लोग ऐसे स्नीक आउट कर गए और हम लोग छत पे ही बंद हो गए. कॉलेज का पहला हफ्ता था और मैं अपने कॉलेज की 12th फ्लोर की छत पे रात को 2 बजे बंद थी. तो यार ऑफ कोर्स कॉलेज इज़ अ वेरी फन राइड और तुम लोग बहुत कुछ सीखते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो. एंड आई कैन जस्ट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बट this 4 to 5 years of college that you will gonna experience after school is like something the golden period you can say. तुम लोग मतलब हर चीज़ ट्राई कर सकते हो यार कॉलेज में. तुमने लाइफ में जो नहीं करी वो तुम कॉलेज में ट्राई कर सकते हो. एंड जो तुम लाइफ में परफेक्ट हो चीज़ों में, उसको भी तुम और परफेक्ट कर सकते हो कॉलेज आके. एंड ऑफकोर्स थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना, ठीक है, ताकि प्लेसमेंट वगैरह कुछ लग जाए. But so that's all I think. Also, please make sure you give it a big fat thumbs up. Also, I think इसने जो भी पॉइंट्स टच करे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज को लेके वो काफ़ी लेजिट थे कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कॉलेज जाना होता है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी होती हैं. एंड इट वुड बी रियली अमेजिंग. फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज मेरे को याद है, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज मेरा कैसा था. मेरे को एक रैंडमली, इट्स अ लाइक स्मॉल वर्ल्ड, इतने सारे लोगों को तुम जानते हो, तो रैंडमली कोई सीनियर मिल गए थे जिनका बर्थडे था. तो वी ऑल वेंट लाइक पार्टी 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 पार्टी. सो अननोन सीनियर से पहले दिन ही पार्टी मिल गई थी, तो और क्या चाहिए कॉलेज में. सो ओके गाइज, दैट्स ऑल for today, and I hope you really like the video, and we'll see you very soon in the next video. Okay, bye. ये इतनी unbelievable, okay, extravagant, cut this part. Ride is really super amazing. Cut this part. पता नहीं क्या हो गया. You are at the right time. Stream state of flawless video.